हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गाइस। दीपक अभी आपका पेपर वैल्यूएट कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज न्यूलिथिक एज इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूलिथिक रेवोल्यूशन डिस्कस। न्यूलिथिक एज 7000 BC ऑनवर्ड, न्यू स्टोन एज इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूलिथिक एज। नहीं देखो, न्यूलिथिक एज इज न्यू स्टोन इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूलिथिक एज, आप ऐसे नहीं। द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। तो आपको बताना पड़ेगा किस तरीके से न्यूलिथिक रेवोल्यूशन में है, वो आपको आगे अभी बताते हैं। कॉजेज फॉर द बिगिनिंग ऑफ Neolithic age, climate improved, became warmer, population density was rising। इसको पूरा अच्छे तरीके से पूरा लिखना है। For balancing the human needs and resources, वर्ड यही है लेकिन लिखना अलग तरीके से है। देखो, आपको लिखना है कि न्यूलिथिक एज इज एसोसिएटेड विद द कमिंग अप ऑफ एग्रीकल्चर। द कमिंग अप ऑफ एग्रीकल्चर टुक प्लेस एट वेरियस प्लेसेस। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इन मेहरगढ़, or for example in Kashmir Valley or Bolan Valley, etc., anywhere. And this coming up of agriculture had a spillover effect. इसका आपको spillover effect देखने को मिलता है at various places and which is referred to as the Neolithic Revolution. आपको इस तरीके से इंट्रोडक्शन करके ये वाला स्टार्ट करना है। Impact of Neolithic age, people started living at one or and before move for balancing the human needs and resources। आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने लिखना है कि as the population has increased, therefore hunting plus food gathering plus domestication of animal was not in a position to fulfill the food need, therefore man took to agriculture। इस तरीके से आपने इसको लिखना है। Impact, standard of people started living at one place ड्यू टू राइज इन द फूड नीड, मैन वॉज फोर्स टू टेक अप एग्रीकल्चर। वही चीज़ आपने यहाँ पे ऊपर कंपेरेटिवली लिखी जा सकती है, नीचे उसी चीज़ को लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। यही चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुड बी डन, दिस वाज ऑलरेडी गोइंग ऑन फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज। इसको नहीं लिखना है। मैन रोस्टेड मीट, ये भी आपका फॉर एग्जांपल नहीं। इसी चीज़ को अपने अलग लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन में ही लिख लेना है। इससे दो डबल बेनिफिट होगा आपकी। इंट्रोडक्शन में एक तो पूरे का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आ जाएगा एंड सेकेंडली इसको रेपिटेशन भी कंपेरेटिवली आपका नहीं होगा। द न्यूलिथिक एज इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। आपने एक पेज पूरा लगा दिया न्यूलिथिक एज के बारे में। इसके कंटेक्स्ट में इसको 30 to 40 वर्ड्स में आप ऐसा लगा लीजिए, इतने जगह पे आप पूरे का पूरा इस आंसर की इंट्रोडक्शन आप लिख सकते थे। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। Neolithic revolution results, people were able to farm and cultivate crops, allowed the people to stay at one place. For the storage, grains were started making pots. Wheel was also invented at this time, which makes their life easy, and also in trade and plowing. Trade will be comparatively coming much later. क्वार्टरजाइट स्टोन वाज यूज, पॉटरी वाज आल्सो इन्वेंटेड, स्टोरेज ऑफ द फूड ग्रेन्स वाज। देखो, अपने पॉइंट्स लिखे हुए हैं लेकिन एक स्कैटर्ड फॉर्मेट में है। देखो, एग्रीकल्चर केम अप, विद द कमिंग अप ऑफ एग्रीकल्चर मल्टीपल अदर डेवलपमेंट्स टुक प्लेस। पहला, फॉर एग्जाम्पल, एक विलेज लाइफ स्टार्टेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फर्स्ट पॉइंट, this was comparatively a big change because the area was comparatively fertile. Second thing, with the coming up of agriculture, the problem of storage came. When the problem of storage came, now the people was basically required to have pots. This was another thing that was there. And for making the pot, wheel was also invented. This was also a revolution at that point of time. With the coming up of agriculture, plus agriculture was there, wheel was known to these people, plus the domestication, the animal was also known to these people, and therefore that led to culmination of making up of the carts. When the carts were being made, they totally, at that point of time, what was basically taking place was that the mobility increased. You have to write at this format, so therefore the presentation will also be changing. The same thing but comparatively written in a different way. Conclusion, Neolithic age is also called as the Neolithic revolution as it, यहाँ पे इस का आई बड़ा है, यहाँ का ए बड़ा है, इसको बचाइए। इट इंक्लूड द बर्थ ऑफ एग्रीकल्चर, बर्थ ऑफ एग्रीकल्चर नहीं होता जी, स्टार्टिंग ऑफ द एग्रीकल्चर विच मीट्स द डिमांड ऑफ द इंक्रीजिंग या राइजिंग पॉपुलेशन। इसको पूरा लिखना पड़ेगा।
and there were also the development of न्यू इन्वेंशन द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर, फॉर एग्जाम्पल व्हील फॉर ट्रेड एक्सेट्रा। अपने पास वही है, चीज़ को अपने अलग अलग तरीके से लिखने की कोशिश करना है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी हो जाएगी, द थिंग्स विल बी कंपेरेटिवली इन अ बेटर वे। तो उसी तरीके से लिखिए, कंक्लूजन का लिखिए, देयरफॉर द क्यूमुलेटिव इफेक्ट of the above mentioned changes categorize the Neolithic age as Neolithic revolution। तो इस तरीके से अपने 1 by 1 पॉइंट्स को और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंट्रोडक्शन। आपने इंट्रोडक्शन में ही एक चीज़ बता देनी है, दैट द फोकस ऑफ माई आंसर इज बेसिकली ऑन व्हाट इज कॉल्ड एज spillover effect. It will be having a multiple level spillover effect, and that spillover effect should be reflected कि one development was taking place which was giving birth to another development like this. That will comparatively make your answer as a multi-dimensional, and that would be comparatively better. इस तरीके से लिखो। Overall आपने पॉइंट्स लिखे हैं लेकिन पूरा नहीं है। आउट ऑफ 15 marks you would be getting approximately 5, but if you write in a proper way it would increase to approximately 10 other marks. Thank you very much.